how they can be connected. There are two different ways by which the resistors can be connected. One is called the series circuits and other is called the parallel circuits. What is meant by the series circuits? By series circuits mean the circuits in which the resistors are connected end to end with the battery. So when you connect the circuits in series, then the current passes through each component remains same, whereas the potential will be divided across the resistors. So here, let me consider, here we have a circuit like this. This is a circuit in which the three resistors of values R1, R2 and R3, they are connected in series. It means the right end of the each resistor is connected to the left end, and when the resistors are connected with such an arrangement with the battery, then the current I will flow. और जब आपका ये करंट I flow करेगा तो then what the Ohm's law states? The Ohm's law states that जब भी किसी रेजिस्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस रेजिस्टर की एंड्स पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर. अगर रेजिस्टर की वैल्यू कम है तो देन उस सूरत में कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा. अगर रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है then more potential drop will be there depending upon current. As the current is same through each resistor, so the potential drop only depend upon the values of resistors R1, R2 and R3. इसलिए I have written there V1 voltage, V2 voltage and V3 voltage. Okay? So now we see that what are these voltages? These voltages are V1 equal to the IR1, V2 is equal to the IR2 and V3 equal to the IR3. So from here, अगर आप तमाम वोल्टेजेस को सम अप करें V1, V2 and V3, तो what you will see that the sum of all these voltages will be equal to the applied voltage. That is the V. इसका मतलब ये हुआ कि let we consider कि अगर बैटरी आपकी ये 12 वोल्ट की है और मैं ये कहता हूँ कि एक रजिस्टर के अक्रॉस आपका 4 वोल्ट आ रहा है, एक के अक्रॉस 3 वोल्ट आ रहा है, एक के अक्रॉस 5 वोल्ट आ रहा है, तो टोटल विल बी द 12 वोल्ट देयर. नाउ यू आल्सो नो दैट व्हाट हैपेंड व्हेन द, अभी पीछे आपने सेल्स में देखा कि जब आप सेल्स को सीरीज अरेंजमेंट में लगाते हो तो फिर हम कहते हैं कि उसकी जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो सम अप हो जाएगी. So here, from your prerequisite knowledge, you can say that when the cells are connected in series, then the total resistance will be the sum of all resistors. ठीक है जी? अगर आपके पास 4 resistors हैं जिनकी values जो हैं R1, R2 and R3 हैं, तो total resistance will be RT, that is equal to the R1, R2, R3 and R4. So इसका मतलब ये हुआ, from this we can say that कि जैसे जैसे number of resistors की तादाद आप बढ़ाते जाओगे तो then उस सूरत में आपकी करंट जो है that will reduce. क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे आप number of resistors की तादाद को increase करोगे तो then the resistance will increase, और resistance के increase होने से करंट जो है वो डिक्रीज करता है बशर्ते कि आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है दिस इज कांस्टेंट.
ये अभी आप पीछे देखा था, हमने देखा था I इज इक्वल टू V बाई R, और अगर V कांस्टेंट है तो I और R जो है ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होंगे। Now here we have the fake Vs is equal to, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है, चलिए ओपन योर नोटबुक, अपनी कॉपीज खोलें जरा और इस सर्किट को ड्रॉ करें। अब देखिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप ये बताएं कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। What will be the total resistance? G. The total resistance can be determined by adding 56 ohm, 100 ohm, 27 ohm, 10 ohm and 47 ohm. 230 230 होगी। अगर मैं ये कहता हूं कि इसमें 2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी आपका 2 मिली एम्पियर का करंट फ्लो दे रही है, या बैटरी आपका 2 मिली एम्पियर करंट सप्लाई करता है, तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ यू कैन डिटरमिन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी if the 2 milliampere current is supplied by the battery। तो आप Vs कैसे निकालोगे? formula V is equal to IR जी, V is equal to I IR। R कौन सा लोगे? Sir, total. sum of Total resistance it means that you can say that Vs is equal to I into RT, ये लिखोगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, तो कैसे निकालोगे? सिर्फ एक एक रेजिस्टेंस करके। हाँ, एक एक रेजिस्टेंस करके। मीन पहले के लिए आप लिखोगे I into R1, इसे लिए लिखोगे आप I into R2, I into R3। इसमें आप ये तमाम करंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट द टोटल दिस वन देखें। Next we have calculate the total resistance for each circuit। ये ना आपको पता चल गया कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आपने कैसे निकालनी है। सब रेजिस्टेंसेस को आप सम अप करोगे तो यू कैन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखें, अगर किसी सर्किट में आपकी तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो, मतलब से कि एक सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और चारों की चारों रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम की हैं, so how you can find the total resistance? Then you can determine the total resistance by simply multiplying the number of resistors to the resistance। मतलब 4 है और हर एक की वैल्यू 1 है, तो इट मीन कि आपके पास 4 into 1 किलो ओम, that is equal to the 4 किलो ओम रेजिस्टेंस टोटल बनेगी। ठीक है, ये लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो उसमें आप सबको सम अप करोगे। लाइक दिस, लेट वी से देयर आर द 22 किलो ओम रेजिस्टर्स, तो 8 into 22 दैट इज 176 ओम आपके पास बनेगा। अच्छा जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आपके पास सर्किट में
रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टर जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो देन द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टर्स होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ये है कि अगर द सर्किट में रेजिस्टर सीरीज में है तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम। हर रेजिस्टर में से आपका एक जैसा करंट फ्लो करेगा, और दिस करंट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन I is equal to V by R, where R represents the total resistance and V is the applied voltage. फिर तीसरी बात ये है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो फिर उस सूरत में हर रेजिस्टेंस के क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द IR ड्रॉप। और ये तो इनके अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो IR ड्रॉप होगी उनका सम जो है दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। और चौथी बात ये है कि आपका ये वोल्टेज जो है ये फॉल करेगा एज वी गो फ्रॉम द वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अदर, like this. If we have a battery of 12 volt, we have the three resistors R1, R2 and R3. You see here that the potential will drop here, mean 3, 4 and 5. It means the total voltage जो है वो इस तरह होगी। जरूरी है इस तरह भी ड्रॉप हो, किसी भी तरीके से ड्रॉप हो सकते हैं। हाँ जी, the next we have calculate the current and voltage drop for the given circuit. Now open your notebook. हाँ जी, अपनी कॉपी खोल ली आपने? उस कॉपी पे बनाए जिसमें दोनों बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है। जी बना लिया है? Draw a circuit in which there are two batteries of 6 volt and resistances 2 ohm and 4 ohm. अच्छा जी, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आपकी ये जो बैटरीज हैं इनकी अरेंजमेंट क्या है। इज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? सीरीज में पैरेलल। और जब बैटरीज को आप सीरीज में लगाते हो तो फिर टोटल वोल्टेज क्या होगी? डिक्रीज है? इंक्रीज सर इंक्रीज करेगी। इंक्रीज सर। रिजल्टेंट ईएमएफ विल बी इंक्रीज। ये टोटल वोल्टेज कितनी बनेगी? What was the total voltage? एक ही 12 वोल्ट। कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बनेगा। अच्छा जी, इसका मतलब अब आपके पास एक सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 6 सर। 6 ओम। अब आप एक सर्किट ड्रॉ करो जिसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। सिंपल, यू हैव अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ड्रॉ कर लिए? अब मुझे ये बताएं कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। और ये 2 एम्पियर आपने कैसे निकाला? टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। 12 वोल्ट की वोल्टेज है और 6 ओम की रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर।
ठीक होगी बात बिल्कुल। इसमें 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब आप इसमें खुद देख रहे हैं कि जो एरोज बने हुए हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दीज आर द कन्वेंशनल करंट्स हैं। और कन्वेंशनल करंट्स जो हैं दे ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड का सिंबल भी नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट्स में याद रखें द करंट्स ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ जाते हैं। अब देखें, आप मुझे ये बताओ कि what will be the potential drop across R1 and what will be the potential drop across R2? करंट आपका 2 एम्पियर है, तो R1 के अक्रॉस आपने वोल्टेज बतानी कितनी होगी और R2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी जी? कैसे निकालोगे? T सर is equal to IR. IR हाँ, तो फिर कितनी होगी R1 के अक्रॉस वोल्टेज? 4 R1 के क्रॉस 4 4 वोल्ट होगी और R2 4 के वोल्ट अक्रॉस 8 8 वोल्ट। आपने बताया। तो इन दोनों वोल्टेजेस का सम किसके बराबर है? 12 12 वोल्ट वोल्ट। 12. की बात हो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ए पे कितना पोटेंशियल होगा और बी पे कितना पोटेंशियल होगा? ए पे 12 है और बी पे 0। ए पे 12 वोल्ट होगा और बी पे 0 वोल्ट होगा। बी पे 0 वोल्ट क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ग्राउंडेड है इसलिए। ग्राउंड से क्योंकि ये ग्राउंडेड से ग्राउंड के कनेक्ट। साथ कनेक्ट है। ग्राउंड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ग्राउंड पे वोल्टेज 0 होती है। चले, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि इसी सर्किट में आपका दोनों रेजिस्टेंसेस के दरमियान एक पॉइंट बना हुआ है, दैट पॉइंट इज सी। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप दोनों रेजिस्टेंसेस के दरमियान एक पॉइंट सी कंसीडर करते हो, मसलन लाइक दिस, लेट्स वी कंसीडर दिस इज अ पॉइंट सी। नजर आ रहा है? यस सर। यस सर. अगर ये पॉइंट सी है तो फिर आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट सी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट। जी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट होगा, 6 6 वोल्ट वोल्ट। होगा? 6 वोल्ट होगा सर। कैसे 6 वोल्ट होगा? 4 वोल्ट. देखें, अगर मैं इसको सी बोलता हूँ, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना था? 12 वोल्ट था। इसका पॉइंट ए पे आप लिख रहे हैं 12 है, 12। राइट? अभी आपने मुझे बताया कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 4 सर. 4 है। वोल्ट। ठीक होगा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? 12 माइनस 12 4 माइनस 4 और 8 हो गया सर जी. नीचे वाले के अक्रॉस कितनी वोल्टेज थी? 8 सर. 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 वोल्ट है तो 8 किसी वोल्टेज का जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे कनेक्ट करोगे? सी पर। इसमें सी पर आपका कितना है? 8 है और ए पे कितना है? 12 है। दोबारा समझाने समय 12 माइनस 8 4 वोल्ट और 12 माइनस ये 8 कितना आएगा? क्योंकि नीचे ग्राउंड बी 0 है
इसे अक्रॉस बनेगी 4. So it is decided that the point C पे आपका जो कनेक्शन होगा वो 8 वोल्ट का होगा. हाँ जी, बात समझ गए सर हैं? आवाज नहीं आ रही. Now we consider the second arrangement. अब इस सेकंड अरेंजमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो बैटरीज हैं, एक 8 वोल्ट की है और एक 6 वोल्ट की है. तो आप मुझे ये बताओ करंट जो है वो किस बैटरी की वजह से फ्लो करेगा, 12 वोल्ट की वजह से या 6 वोल्ट की वजह से? Sir, 12 volt. 12 वोल्ट की वजह से. 12 वोल्ट की वजह से. तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट सर. कितनी होगी? 18. टोटल वोल्टेज कितनी होगी दोनों सोर्सेज की? 18 वोल्ट. कितना? 18 सर. 18 होगा. देखिए अगर आप इस फिल्म को गौर 6 होगा सर. negative of one cell is connected with the negative of other cell. अगर आप के पास सूरत हाल ये हो तो दोनों सेल्स किसी तरह की सर अरेंजमेंट में है. सर Adnan raised hand. Adnan, what is your question? सर जी बहुत शोर आ रहा है. ये शोर बिल्कुल आपकी बात ध्यान है, ये लोग अपने अपने माइक्स को ऑफ कर दें. सर आवाज नहीं आ रही. जी अब शोर तो नहीं आ रहा? नो सर. नो अब ठीक सर. है. No, sir. अब ठीक है. ठीक है. अब मुझे ये अब देखें इसमें दोनों सेल जो हैं दोनों बैटरीज के नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है, पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है और ये सीरीज में लगे हुए हैं. अभी पीछे हमने देखा कि अगर सीरीज में सेल्स इस सूरत हाल में दो सेल्स हैं, एक की वोल्टेज 1.5 है दूसरे की 1.5 है और दोनों के नेगेटिव आपस में अगर कनेक्ट होंगे तो फिर आपने कहा कि नो करंट विल फ्लो. लेकिन अगर सूरत हाल इस तरह हो कि एक बैटरी की स्ट्रेंथ जो है वो दूसरी बैटरी की स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो करंट जो है दैट विल फ्लो ओनली ड्यू टू द बैटरी ऑफ हायर. लेकिन टोटल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. तो अब टोटल वोल्टेज कितनी बनेगी? दैट इज 6 वोल्ट बनेगी. तो अब उस सूरत में बताना है कि अगर टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट. एक बात. दूसरी बात आपने टोटल रेजिस्टेंस बतानी है. तीसरी बात आपने ये बताना है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है और R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है. एंड देन इन फाइनल यू हैव टू टेल व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एट पॉइंट A एंड B. अब आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट बी पे वोल्टेज कितनी होगी और पॉइंट ए पे वोल्टेज कितना होगा? सर पॉइंट ए पे 6 वोल्ट होगा. पॉइंट ए पे 6 और बी पे होगा 0. और पॉइंट बी पे आपका और बी पे 0 वोल्ट. 0 होगा सर. ठीक है. तो ये आपने अच्छा. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. मसलन here is the problem. Let me consider here we have to find the total resistance, current, potential difference between A and E and the potential at point E. ठीक है. सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस सर्किट के अंदर आपकी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो किस अरेंजमेंट में है? व्हाट इज द अरेंजमेंट सर जी? सीरीज है सर. ये कैसे पता चला सीरीज अरेंजमेंट? सर एंड टू एंड टू एंड लगा हुआ है. इट मीन देयर इज ओनली वन डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ करंट. दैट इज कॉल्ड द सीरीज. What will be the total resistance of this circuit? 6 ohm. That will be 6 ohm. 6 ohm.
फिर अगर आपका बैटरी, इसका मतलब अब आप एक सर्किट बनाएंगे जिसमें 6 ओम की रेजिस्टेंस हो और एक बैटरी 12 वोल्ट की हो। अब आप मुझे ये बताएं कि हाउ मच करंट विल फ्लो। 6 2 एम्पियर। एम्पियर। 2 ampere. दैट इज 2 एम्पियर। ठीक हो गया। फिर आप मुझे ये बताएं हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस R2। 2 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। 4 4 वोल्ट होगी। और 3 ओम के अक्रॉस 6 ओम। 6 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। और 1 ओम के अक्रॉस 2 2 volt. 2 वोल्ट। वोल्ट। तो ये कितना बना? 4 + 6 10 10 10 प्लस + 2 12। 12 इसका मतलब 12 टोटल वोल्ट। वोल्टेज आपकी बैटरी की 12 वोल्ट होगी। अच्छा, यहां तक तो बात होगी सारी। अब मुझे ये बताओ अब ये कैलकुलेट कैसे किया ये तो बता। व्हाट इज द वोल्टेज एट पॉइंट ए? 12. 12 वोल्ट। 12 दैट इज 12 वोल्ट। वोल्ट। What are the values of voltages at point F and G? 0 0 होगी। 0। अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट पॉइंट E? 2 ये कितना होगा? 2 कैसे? That will be 2 2 volt with respect to 2 what? वोल्ट। Is with respect to F or G? हाँ, ये 2 वोल्ट आप बता रहे हो और वोल्टेज हमेशा मेजर की जाती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? जी जी, ग्राउंडेड। एफ और जी। ग्राउंड कहाँ पे लगा हुआ है? एफ जी। एफ और जी दोनों इसका, क्योंकि अगर आप ग्राउंड देखें तो दोनों का एक ही है। ठीक है, तो ई पे वोल्टेज कितनी हो गई? 2 वोल्ट की हो गई। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट पॉइंट डी? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ये कैसे आपने मुझे बता दिया कि दिस इज 2 वोल्ट? 2 वोल्ट। कैसे है? कोई रीजन तो देना। व्हाट इज द रीजन? सर डी और ई के दरमियान कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इस वजह से ई की भी 2 वोल्ट है और डी की भी 2 वोल्ट होगी। ई और ई के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि पॉइंट ई और डी दोनों जो है दे आर आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है, या इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाती है। इक्विपोटेंशियल पढ़ा हुआ है ना आपने एफएससी में? यस सर। ठीक है। अगर आपने अमूमन ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका कोई परिंदा जो है वो वाबला लाइन पे, लाइव वायर पे बैठा हुआ तो उसको करंट नहीं लगता। व्हाट इज द रीजन? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, 0 होगा। उसके बाद उसके 0 होता है सर, पोटेंशियल सेम होता है, उसका दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट को फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट बी और सी पर पोटेंशियल क्या होंगे? 8 वोल्ट। 8 होना ना। पॉइंट बी और सी 8 के पास वोल्ट। पोटेंशियल 8 वोल्ट। 8 वोल्ट होगा। तो पॉइंट और आर
3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल था? 6 तो डी पे कितना था? 2 था। तो सी पे 2 हुआ था 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट का। 8 इसी तरह ए पे कितना है? 12 है। 12 और वोल्ट। बी पे 8 है, तो कितना आ गया? 4 वोल्ट का हो गया। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है। ऑलराइट, यस सर। नेक्स्ट, this is another problem. If you have a battery of 24 volt and two resistors of 100 ohm and 60 ohm. So in this circuit, again the resistors are connected in series. Series में है? Yes, sir. ठीक है, तो आपने एक तो करंट फाइंड आउट करना है। करंट कैसे निकालोगे? I is equal to V by R. E is equal to V over R. और RT, not R, RT. RT कितना बनेगा? 160 ओम। एक आपको 160 बताना है 160. what are the value of potential at point C? 0. 0। और पॉइंट B पर करंट निकालेंगे। 20 ठीक है, कितना बनता है? देखिए 24 को 160 से डिवाइड करें तो कितना आंसर 24 वोल्ट। 24 को आप 160 से डिवाइड करो। The answer is what? हाँ 160 को डिवाइड करना था। जी हो गया है? Yes, sir. 0.15. 0.15। अब 0.15 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो। 9. 9. 2.4. कितना बना? 2.4. 9. 9. 2.4, sir. चले, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? जी हाँ जी, हेलो। जी सर। यस सर। अच्छा, तो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे द अदर टॉपिक, द वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है ये क्या होता है? जी, व्हाट इज वोल्टेज, पहली बात वोल्टेज डिवाइडर रूल हम कब अप्लाई करते हैं? वोल्टेज डिवाइडर रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं कि जब आपका सर्किट जो है दैट इज द सिंगल लूप सर्किट हो। और व्हाट इज meant by a single loop? A single loop means a circuit in which there is only one path for the flow of current. और एक सिंगल पाथ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर
आपकी रेजिस्टेंसेस जो है या बैटरी जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हेलो, सीरीज में लगी होगी तो वो आपका सिंगल लूप सर्किट कहलाएगा। तो सिंगल लूप सर्किट के अंदर हम देख एक बात। दूसरी बात, वोल्टेज डिवाइडर रूल उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब द सोर्स करंट इज नॉट नोन। अगर आपको करंट का नहीं पता, अभी तक ऊपर में तो हमने देखते आए हैं कि करंट मालूम करेंगे तो आप वोल्टेजेस निकालते हो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इफ द करंट इज नॉट नोन। अगर आपको करंट का नहीं पता, इंशाल्लाह इसको हम कल देखेंगे। हाँ जी, अप टू दिस, एनी क्वेश्चन? सर ये प्रॉब्लम है पॉइंट ऑफ द लोएस्ट पोटेंशियल, ये वाला समझा दे एक दफा। पॉइंट ऑफ द लोएस्ट पोटेंशियल एंड पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोअर। पहली बात तो है पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल कौन से, सी और डी। सर जी पोटेंशियल ऑफ बी भी बता दें क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और फिर है वैल्यू ऑफ द लोएस्ट पोटेंशियल। लोएस्ट पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। सर जी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी भी क्या बता दें? पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो है दैट इज एट द 24 वोल्ट। ये कौन है, 24 वोल्ट, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड विद व्हाट, दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अंडरस्टैंड? And sir, potential at point A. पॉइंट ए पे कितना होगा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल आप मेजर करोगे, आप ये देखोगे कि करंट कितनी चलेगी, तो 100 के क्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी। ठीक है, आप एक सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आप ये करोगे कि इस सर्किट के अंदर इन दोनों ग्राउंड्स को आप ज्वाइन कर दें तो आपका एक कॉमन ग्राउंड बन जाएगा। तो कॉमन ग्राउंड की मदद से आपने देखना है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है और बी पे कितना है। अभी आपने बी पे आपने निकाल लिया था 24। तो वोल्टेज देखो 60 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर जी एक बार ये बता दें कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट जी करते हैं? रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? बेटा फार्मूला है आपके पास, इक्वल टू आई आर। यस सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी सर्किट में आई देखोगे कि आई की वैल्यू कितनी है। ठीक है सर। वो आई की वैल्यू निकाल के उसको उस रजिस्टर से मल्टीप्लाई